اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ممبئی میں 100 سال کا برسات کا، بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ممبئی میں 26 مئی یعنی گزشتہ کل کی صبح 1 گھنٹے میں 104 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ 12 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 254 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کولابا میں مئی کی سب سے زیادہ بارش 295 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سخت بارش کی وجہ سے لال باغ، چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس یعنی CST اور دیگر تعلیمی اداروں میں پانی جمع ہو گیا، نتیجتاً ٹریفک اور لوکل ٹرین متاثر ہوئی۔ لیکن صاف طور سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہا بدعنوان، مہا کرپٹیڈ اور گھوٹالے باز مہایوتی فڈنویس سرکار، BJP سرکار نے پہلی ہی بارش میں ممبئی کو ڈبو دیا۔ سڑکوں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں، ریل پٹریوں، زیر زمین میٹرو اسٹیشنوں اور اسپتالوں میں پانی جمع ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ممبئی کے جس میٹرو اسٹیشن کا 17 دن پہلے افتتاح ہوا، اوپننگ ہوا، ایک ہی بارش میں، پہلی ہی بارش میں وہ پانی ہو گیا۔ ممبئی میں پہلی ہی بارش سے پانی بھر گیا، یعنی نالا صفائی کے نام پر کروڑوں کا گھوٹالا مہایوتی سرکار کا سامنے آ چکا ہے۔ یعنی پہلی ہی بارش نے مہایوتی کی پول، ان کے کرپشن کی پول کھول کر رکھ دی۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ووادت اور خدا نے جن کی زبان میں بوبڑا پن دیا ہے، یعنی بوبڑے نیتا کریٹ سومیا، جو شرارت کرتے رہتے ہیں، اس لیے شاید اللہ نے ایسی ہی زبان بنائی، ورنہ وہ اور زیادہ بولتے تھے۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے خلاف اب یہ بوبڑے نیتا سرگرم ہو گئے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور سابق رکن پارلیمنٹ کریٹ سومیا نے ممبئی میں قربانی کے تہوار عید الاضحیٰ، جو مسلمانوں کا ایک اہم تہوار ہے، اس کے خلاف کریٹ سومیا نے مہم شروع کی ہے۔ اس سے پہلے کریٹ سومیا نے ممبئی میں مسلمانوں کے خلاف مہم کے تحت ممبئی کی مساجد میں لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکروں کے خلاف مہم چلائی تھی، جس کے بعد اب وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے خلاف سرگرم ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے ممبئی کے کئی رہائشی چالوں اور عمارتوں کا دورہ کیا۔ جی ہاں، یعنی بی جے پی کو 2 زہریلے نیتا مل گئے ہیں۔ ایک تو وہی ہے
डेढ़ फुटिया और एक ये है, यानी ये लोग मुल्क में माहौल खराब करने के लिए और जहरीला माहौल करने के लिए मैदान में आ चुके हैं और किसी जहरीले नाग और कोबरा से भी ज्यादा ये जहर फैलाएंगे। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही कि भारत में तेजी से कोरोना के मामले, कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और मरीजों की तादाद, अब कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंच गई है और दिल्ली में 100 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले में उछाल देखी जा रही है। महकमा सेहत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में 104 एक्टिव केसेस सामने आए और गुज़िश्ता एक हफ्ते में 99 नए केसेस सामने आने से सेहत इंतजामिया और शहरियों में फिक्रमंदी बढ़ गई है और वहीं पूरे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 से ऊपर चली गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत और महकमा सेहत ने निगरानी और जांच को मजीद तेज करने का फैसला किया है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना की सबसे ज्यादा मामले केरला में यानी 430 नए मामले सामने आए हैं और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र जहां 209, जबकि दिल्ली में 104 एक्टिव केसेस, कर्नाटक में 34 नए मामले सामने आए हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 26 मई को दोपहर 3 बजे के करीब रियासत महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, बनाए गए हैं, बड़े दबंग और कद्दावर नेता है, बुल्डाना के रहने वाले हैं, जनाब हर्षवर्धन जी सपकाळ। गुज़िश्ता कल उनके घर पर उन्होंने मुझे दावत दी, बुलाया, अच्छा लगा और गुज़िश्ता कल 3 बजे दोपहर में मैं उनके यहाँ पहुंचा। मुझे खुशी है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत जोरदार अंदाज में मेरा सत्कार किया, सम्मान किया, इज्जत अफजाई की, इज्जतों से नवाजा और फिर उसके बाद तकरीबन आधा से पौना घंटा हमारी डिटेल तफसीली गुफ्तगू हुई। सबसे पहले महाराष्ट्र के हालात पर और फिर देश के हालात पर कि किस तरीके से बीजेपी नाकाम और फेल हो चुकी है और उन्होंने बताया कि अगला दौर मुफ्ती साहब, अगला दौर कांग्रेस का ही होगा क्योंकि बीजेपी की बदमाशियों की पोल खुल गई है। बीजेपी की नफरतों वाली पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाली घटिया किस्म की राजनीति और न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे बकवास बयानात और मोदी जी का बेवकूफ बनाना ये जनता जान चुकी है और बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और हाथ में डिग्री लेकर फिरते हुए लाखों पढ़े लिखे नौजवान, बेरोजगार नौजवान, ये तमाम चीजें अब जनता समझने लगी है और अब अगला दौर बीजेपी की सफाई का है और भारत स्वच्छ अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी को साफ किया जाएगा और कांग्रेस का दौर होगा। इसी दौरान हमारी बातचीत हुई कि हम दोनों मिलकर किस तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल करने की बात कही और कहा कि मुफ्ती साहब आपको हमको मिलकर खूब मजबूत अंदाज में काम करना है। मैंने भी बिल्कुल उनको यकीन दिलाया कि मैं अपनी ताकत के एतबार से इंशाल्लाह कांग्रेस में काम करूंगा और कांग्रेस एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजकीय पक्ष नहीं, बल्कि एक चळवळ है, एक विचारधारा का नाम है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाना, अत्याचार नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, जनता के विकास के लिए, मुल्क के विकास के लिए लड़ना, ये कांग्रेस की चळवळ है, ये मुहिम है। भारत को जोड़ना, भारत से नफरतों को खत्म करना, ये राहुल गांधी का उद्देश्य है, मिशन है। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस के विचारधारा के साथ ही हमेशा काम किया है। मैंने कहा सपकाळ जी से कि मैं भी उसी विचारधारा पर काम करने वाला शख्स हूं। खैर, बड़ी अच्छी बैठक हुई और बड़ा अच्छा लगा हर्षवर्धन जी सपकाळ को मिलकर और जिले की हमारी अपनी जो भी मौजूदा हालात है,
कांग्रेस को लेकर और फिर आने वाले इलेक्शंस को लेकर जो आ रहे हैं, जिला परिषद के इलेक्शन, लोकल इलेक्शन, तमाम चीज़ों को लेकर तफसीली गुफ्तगू हुई। और गुज़िश्ता कल की प्रदेश अध्यक्ष दबंग नेता हर्षवर्धन जी सपकाल और मेरी बैठक बड़ी प्यारी रही। मैं मुबारकबाद देता हूँ हर्षवर्धन जी सपकाल को उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, और दुआएं भी करूँगा और करता हूँ कि खुदा उनसे खूब काम ले, उनको लंबी उम्र, सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती के साथ अता करे और उनसे देश हित और महाराष्ट्र हित और जनता हित के खूब काम उनसे रब्बुल आलमीन ले। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा मंजलेगांव जिला बीड़ से। जी हाँ, एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें मंजलेगांव के साबिक MLA आरटी देशमुख की मौत हो गई। उनकी गाड़ी का तुलजपुर लातूर रोड पर हादसा पेश आया और उन्हें इलाज के लिए लातूर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान आखिर वो दम तोड़ गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आरटी देशमुख सोलापुर से मंजलेगांव लौट रहे थे। तेज बारिश की वजह से सड़क गीली और फिसलन की वजह से उनकी 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर बेकाबू होकर बैलकुंड के करीब हाईवे पर एक डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में उनके ड्राइवर और उनके बॉडीगार्ड शदीद जख्मी हुए। लेकिन साबिक एमएलए माजी आमदार विधायक आरटी देशमुख की मौत हो गई। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जालना से हमारे रिपोर्टर मौलाना ईसा खान काशफी ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड जालना के वफ़द ने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के एक बड़े मुतहर्रिक, फ़आल, ज़िम्मेदार आलिम-ए-दीन हज़रत मौलाना उमर महफूज रहमानी से औरंगाबाद में खुसूसी मुलाकात की। आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले यानी 25 तारीख को औरंगाबाद के आम खास मैदान में एक अजीमुशान इजलास तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ को लेकर, औक़ाफ़ की हिफाजत को लेकर एक अजीमुशान इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें हज़रत मौलाना उमर रहमानी और ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के बड़े रहनुमा, जिम्मेदारान और बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने, हिंदू नेताओं ने, जैसे जितेंद्र आहाड़ वगैरह और भी पार्टियों के लोगों ने, मूल निवासी साथियों ने बड़ी तादाद में इस इजलास में शिरकत की और वक्फ के काले कानून को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया, आंदोलन किया और वक्फ के इस काले कानून को बिल्कुल देश विरोधी, संविधान विरोधी और मुल्क के अमन व अमान को खत्म करने वाला काला कानून बताया। और ये मुतालबा और डिमांड किया गया कि मोदी सरकार इस काले कानून को फौरन वापस ले। खैर, बाद नमाज असर इजलास, उसी दिन इजलास से पहले बाद नमाज असर मौलाना उमर महफूज रहमानी से जालना की इस पूरी टीम ने, वफ्द ने मुलाकात किया, जिसमें मौलाना काजी शरीयत जालना, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नायगावी और ऐसे ही मौलाना सैयद नसरुल्लाह हुसैनी, सोहेल नदवी, शेख मुजीब सेक्रेटरी जमात इस्लामी महाराष्ट्र, फिरोज अली, मौलाना मुस्लिम, विकास परिषद लियाकत अली खान, यासिर जालनवी, वादत इस्लामी हिंद जालना, सैयद शाकिर नाजिम जिला जमात इस्लामी हिंद जालना, असदुल्ला रिजवी, SDPI जालना, ये तमाम अफराद मौजूद थे। लेकिन गुजरात के वडोदरा से हमारे रिपोर्टर हाफिज उवैस सेठ, ऐसे ही इम्तियाज वोरा और पूरी टीम ने जो वहाँ पर काम करती है, मौलाना इलियास है, अबरार है, इम्तियाज भाई है, ये पूरी टीम ने मुझे बताया कि वडोदरा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। कर्नल सूफिया के कुंबे ने फूलों से उनका इस्तकबाल किया। दाहोद में इलेक्ट्रिक इंजनों को हरी झंडी दिखाई गई और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया गया। मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर है। इसकी शुरुआत उन्होंने बड़ौदा में एक रोड शो के जरिए की। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने फूलों से उनका इस्तकबाल किया। हिंदुस्तानी फौज की बहादुर बेटी अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी के कुंबे के अराकीन ने भी वज़ीर आज़म मोदी के रोड शो के दौरान फूलों की बारिश की। गुजरात के अपने दौरे के दौरान मोदी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे।
रोड शो के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शाइला ने कहा कि मोदी से मिलकर हमें अच्छा लगा। मोदी जी ने खातून इख्तियार कारी के लिए बहुत कुछ किया है। सूफिया मेरी जुड़वा बहन है और उन्होंने कहा कि जब आपकी बहन मुल्क के लिए कुछ करती है तो ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तरगीब होती है। और उनकी बहन ने यह भी कहा कि अब मेरी बहन सूफिया कुरैशी सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बहन है। इस मौके पर सूफिया की बहन के अलावा उनके भाई कुरैशी भी उस वक्त मौजूद थे। खैर इतना तो पक्का है कि सूफिया कुरैशी ने जंग लड़ी, फौज ने जंग लड़ी, बहादुरी के साथ मुकाबला किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन माशाल्लाह मोदी जी इसका पूरा क्रेडिट जरूर लेंगे क्योंकि उनको ये हुनर जबरदस्त आता है। आपदा में भी अवसर, मुसीबत में भी कैसे फायदा उठा लिया जाए इसका वो गुर अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब अगला इलेक्शन चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो या कहीं का भी हो, वो यूं समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही लड़ेंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़ा शर्मनाक वाक़या पेश आया जहां पर भगवा आतंकवादियों ने बाकायदा 3 से 4 मुस्लिम गोश्त के ताजिरों को, व्यापारियों को मॉब लिंचिंग का शिकार किया, उनको निशाना बनाया और बड़ी बेदर्दी से उन्हें मारा। लेकिन खैर अभी खबर आ रही है कि अलीगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में हिंदू संगठन, हिंदू तंजीम से जुड़े हुए 3 मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। दीगर 10 की तलाश, 10 आतंकवादियों की तलाश जारी है। मुतासिरीन के पास गोश्त के कारोबार का जायज लाइसेंस था। खुद पुलिस ने ये बयान दिया है। यूपी के अलीगढ़ में पेश आए मॉब लिंचिंग वाकये में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हिंदुत्व संगठन से मुंसलिक 20-25 नामालूम और 13 नामजद अफराद के खिलाफ सख्त दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। इन मुल्जिमान पर, इन आतंकियों पर कत्ल की कोशिश, डकैती और वसूली जैसे संगीन दफात लगाए गए हैं। इनमें से 3 नामजद मुल्जिमान विजय गुप्ता, विजय बजरंगी और लोकुश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब पुलिस दीगर मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ है। अयादीन चंद्रशेखर आजाद, जानते हैं आप लोग कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर है, नेशनल प्रेसिडेंट है। चंद्रशेखर आजाद दबंग कदावर नेता है और बड़ी यूं समझिए कि बड़ी मोहब्बतों के साथ लोगों ने उनको पार्लियामेंट में पहुंचाया है। अभी वो मेंबर पार्लियामेंट, रुकन पार्लियामेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने बड़ा जबरदस्त आवाज उठाई और खुलकर ये कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में दलित, पसमानदा तबकात यानी ST, SC, OBC और खुसूसन मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में बड़ा जुल्म किया जा रहा है। रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद ने हुकूमत पर हमला किया और कहा कि SC, ST, OBC के साथ मारपीट और कत्ल के वाकयात रोज हो रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में इंतशार के माहौल की वजह से खवातीन और महिलाओं पर भी तशद्दुद किया जा रहा है और गोश्त के नाम पर लोगों का नाम पूछकर कत्ल किया जा रहा है। और पुलिस के काम करने के अंदाज पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हम अपने कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ सकते और पुलिस है कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जुल्म सितम का यूं समझिए कि कारनामा अंजाम दे रही है, यानी पुलिस ज्यादा आतंक कर रही है। अय्यादीन, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की अजीम दीनी तालीमी दर्शगाह और हिंदुस्तान के लिए ऐसी दर्शगाह जिस पर हिंदुस्तान फख्र करता है और जंग आज़ादी नाज करती है, ऐसी दर्शगाह जिसे दारुल देवबंद कहते हैं। दारुल देवबंद का बड़ा बयान आया है गज़ा के हालात को लेकर, गज़ा और फ़लस्तीन के मजलूमों को लेकर और इजराइल के आतंकवाद को लेकर। दारुल देवबंद ने कहा है कि सुनो, गज़ा ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक खुली और मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है, यानी इजरायली आतंकवादी वहां पर जंग नहीं बल्कि ये प्लान फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। दारुल देवबंद के दफ्तरे एहतमाम से जारी प्रेस नोट में फलस्तीन के मजलूमों को सब्र, इस्तिकामत और कामयाबी की दुआ दी गई। दारुल देवबंद के दफ्तर एहतमाम से प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें फलस्तीन बिलखुसूस गज़ा के सरजमीन में इस वक्त तारीख के बदतरीन जुल्म सितम हो रहे हैं।
ہر روز معصوم بچوں، عورتوں اور بے قصور شہریوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ پناہ گاہیں، اسپتال، تعلیمی ادارے، عبادت گاہیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ غزہ برسوں سے محاصرے میں ہے اور حالیہ مہینوں میں یہ محاصرہ سنگین ترین انسانی بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ صرف زمین، سمندر اور فضا سے اس کا گھیراؤ کیا گیا ہے، بلکہ اب غزہ کا حال یہ ہے کہ اب کھانے پینے کے پانی، ایندھن، دوا اور طبی امداد تک کو روک دیا گیا ہے۔ لاکھوں انسان بھوک، پیاس، بیماری، خوف اور تباہی کے عالم میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ پریس کو جاری کی گئی تحریر میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک کھلی اور منظم نسل کشی ہے جو 21ویں صدی کی ترقی یافتہ اور مہذب ترین دنیا کی آنکھوں کے سامنے جاری ہے اور جس کا مقصد ایک مظلوم قوم کو صفحے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ صہیونی ریاست نے ظلم و بربریت کی وہ حدیں پار کر لی ہے جن پر تاریخ بھی شرمندہ ہے اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کے ادارے بے بس یا خاموش تماشائی بنے ہیں۔ اور اس پریس نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے نازک اور المناک دردناک حالات میں ہمیں ہندوستانی مسلمانوں پر ایک اہم دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، خجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ